Hello everyone, welcome back to the channel. I'm your chemistry mentor Kiran Mankotia and today we are going to understand what are colligative properties. तो बच्चों सॉल्यूशन का फाइनल टॉपिक हमारे पास बच जाता है colligative properties का, that we are going to discuss in today's lecture. Alright, so let's start with the session. Okay, so colligative properties and determination of molar mass. तो बच्चों colligative properties ऐसी properties होती हैं solution की which only depends upon the amount or we can say number of solute particles. Okay, जो सिर्फ number of solute particles पे depend करेंगी and they are independent of the nature of solute particle. वो नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. दे जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. सोल्यूट पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन में ज्यादा हैं और कम है तो दे आर गोइंग टू वेरी. ओके, सो ऑल दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of the particles present in the solution. ठीक है, so as you can see कि colligative properties सिर्फ और सिर्फ number of solute particles पे depend करती हैं, ठीक है, and they are 4 in number. 4 तरह की colligative properties इस particular chapter में हम discuss करने वाले हैं, ठीक है. But first of all let us understand something about colligative. Colligative word आया कहाँ से? तो ये word Latin word से आया है. Okay, co means together and जो ligand है that means to bind. Okay, so these properties depends upon the number of solute particles जो कि किसी solution के अंदर present है. Okay, so they are 4 in number. Let us see what are the 4 colligative properties which we are going to study in this chapter. First one is relative lowering of vapor pressure. ठीक है, relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, and the fourth one is osmotic pressure. Very important topic. Colligative property बहुत ज़्यादा important है. Okay, from your examination point of view और आगे competitive exams में भी इस particular topic से बहुत सारे numericals भी पूछे जाते हैं, ठीक है. So make sure कि अच्छे से इसको समझें यहाँ पे. Alright, so let's start with the first colligative property. लेकिन उससे पहले I have a question for you. अब आप बोलोगे मैम सेशन अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है और आप क्वेश्चन पहले से पूछ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन एक बार देख तो लो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला वेट ईच ऑफ सोडियम क्लोराइड. One formula weight of each sodium chloride and glucose is dissolved in 1000 milliliter of water separately and 2 different solutions are prepared. Which solution experiences more colligative property? तो what we have done over here is मैंने क्या किया, मैंने 1000 ml water एक तरफ लिया, 1000 ml water दूसरी तरफ लिया, ठीक है. What I did, मैंने लिया 1000 ml water, यहाँ पे डाल दिया मैंने NaCl, ठीक है. अगेन मैंने दूसरे बीकर में लिया 1000 ml वाटर, ओके, वाटर जिसमें मैंने अब ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है. ओके, ग्लूकोज डाल दिया, यहाँ पे क्या था वाटर और NaCl. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, अब देखो बच्चों वाटर में जाते ही जो सोडियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है. वाटर में जाते ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इस तरह की डिसोसिएशन नहीं होती है हमारी ग्लूकोज के केस में. ओके, तो ग्लूकोज के केस में कोई डिसोसिएशन नहीं, वो एक ही पार्टिकल, एक ही मॉलिक्यूल की तरह वाटर में रहेगा. लेकिन सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करती हूं देन इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. ओके, अपने आयंस में ब्रेक डाउन करेगा एंड डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुझे मिलेंगे. ओके, सो बेसिकली जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे आर इंक्रीजिंग एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली. ओके, सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर अगर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा ही वो पर्टिकुलर हमारा सॉल्यूशन शो करेगा. ओके, सो 1 मॉलिक्यूल और 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ sodium chloride provides 2 ions after dissociation, लेकिन
जो हमारा ग्लूकोज है, और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर, तो वो एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ही रहेगा इन द वाटर एंड इसीलिए वो डिसोसिएट नहीं होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें कम रहेंगे एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई सोडियम क्लोराइड ज्यादा यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके, सो देयरफॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एक्सपीरियंसेस ग्रेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिक क्वेश्चन था, ओके, बस आपको बेसिक सा आइडिया लगाना था कौन डिसोसिएशन करता है, कहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे, ऑलराइट, एंड दैट इज इट। ओके, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. Now let's start with the very first property, very first colligative property, which is relative lowering of vapor pressure. Okay, so लास्ट लेक्चर में, ओके, लास्ट जो इससे पहले वाली वीडियो है बच्चे, वहां पे हमने देखा था कि जो हमारा एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ठीक है, वो कब बॉयल होना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, कोई भी लिक्विड कब बॉईल करना शुरू करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, कब स्टार्ट करता है वो बॉईल करना, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ओके, देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। सो दैट मीन्स कि हमें टेम्परेचर तब तक देना पड़ता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड को जब तक उसका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। ऑलराइट, सो if a non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure of the solution decreases. That we already know, okay, that is vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of the solvent. Now what does that mean? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक सॉल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, एक मैंने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट लिया है। यहाँ पे अगेन मैं कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा रही हूँ। इफ आई हैव टेकन द प्योर सॉल्वेंट ओवर हियर, प्योर सॉल्वेंट है, मान लो सिर्फ वाटर है, ओके, इसको मैंने हीट किया तो इसके सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स हैं ऑन द सरफेस वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ही होंगे, कोई सॉल्यूट यहाँ पे एडेड नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वेपर्स भी में जो कन्वर्ट हो रहे हैं दे आर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ऑलराइट, तो वेपर प्रेशर ओवर हियर इज हाई। वहीं पे अगर मैं इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दूं, चाहे वो वॉलेटाइल हो चाहे वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, अब कुछ मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स की एक्टिविटी थी, जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एक्टिविटी थी, दैट इज डिक्रीजिंग। इसीलिए सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन बन जाता है जब, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट डिक्रीजेस। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर मैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कंपेयर करती हूं, देन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर एंड इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिंस वी आर कंसिडरिंग द सॉल्यूट वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं ऐड करती हूं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एज यू नो कि सरफेस पे अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जो उतने एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं इन द वेपर फॉर्म। ओके, और इस चीज को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान देना है दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, पहले मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट का, प्योर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, माइनस अब जो सॉल्यूशन फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है दैट हैज बीन डिक्रीज्ड, वो कम हो चुका है। सो ये जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, एम आई क्लियर टिल नाउ? आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ। ओके, सो हमने क्या देखा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP। मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस तरह से डिनोट कर रही हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस जो लिक्विड का, जो सॉल्यूशन के अंदर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर था दैट हैज बीन डिक्रीज्ड। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, यस, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो ये P1 है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू Chi1। एम आई क्लियर?
Yes, P1 क्या है? It is the partial pressure, partial vapor pressure of the first component that is directly proportional to the mole fraction of the first component. Okay, और is equal to लगाएंगे then it will be equal to P1 naught, that is the vapor pressure of the pure component. ओके तो यहाँ पे मैं राउट्स लॉ अप्लाई करती हूँ, तो जो मेरी इक्वेशन 1 है दैट इंप्लाइज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure is equal to P1 naught minus P1 naught chi1. ओके तो ये क्या हो जाएगा? yes, what it will be equal to? lowering of vapor pressure is equal to P1 naught को कॉमन ले लीजिए, 1 minus chi1. ओके 1 minus chi1 क्या होता है? we know that chi1 plus chi2 is equal to 1. ओके तो ये जो 1 minus chi1 है that is equal to P1 naught chi2. okay so it is lowering of vapor pressure is equal to P1 naught chi2. am I clear till now? yes बच्चा, ठीक है, तो यहां तक आ गया हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन. ऑलराइट, तो लेकिन ध्यान से सुनना है दैट इट इज फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओनली. नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम इसे रिलेट कर रहे हैं टू द प्योर लिक्विड. ओके ध्यान से देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? ओवर हियर relative lowering of vapor pressure will be equal to this P1 naught chi2 divided by P1 naught. Okay, am I clear or not? yes बच्चा, relative lowering of vapor pressure will be equal to P1 naught chi2 by P1 naught. और यहाँ पे हम और कैसे लिख सकते हैं? that delta P1 by P1 naught is equal to P1 naught chi2 by P1 naught. ओके और यहाँ पे देखो ये P1 naught कैंसल आउट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू chi2. दैट मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये डिपेंड कर रहा है. दैट मीन्स ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ओके दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्लियर और नॉट? सबसे पहले हमने क्या किया? सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला, बिकॉज जब हम एक प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन देयर विल बी डेफिनेटली अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर. ठीक है, तो हमने देखा कि पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, बाद में सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो गया. देन आफ्टर दैट थोड़ा सा हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज को यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, एंड फाइनली जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग इट विद द प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, उसके वेपर प्रेशर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट chi2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ऑलराइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यहाँ पे ये क्या है? दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Okay, and in a solution containing several non-volatile solutes, lowering of vapor pressure depends upon the sum of the mole fractions of different solutes. Alright, what does that mean? Let us see. अब देखो बच्चों, okay, wait, यहीं पे हम solve करेंगे. Wait over here. Okay, so this is P1 naught by P1 naught minus P1. Okay, so this is P1 naught minus P1 by P1 naught and that is equal to chi2. अब यहाँ पे ध्यान से देखो chi2 क्या है? chi2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ऑलराइट, सो लेट्स सी किस तरह का यहाँ पे एक्सप्रेशन एक डेवलप होता है. लेट अस सी. Okay, so it will be P1 naught is equal to, this is what? relative lowering of vapor pressure का expression, but we know that जो chi2 है that is equal to number of moles of second component divided by total number of moles. Here we are dealing with binary solution. Okay, so यहाँ पे हम put कर देते हैं that P1
naught minus P1 divided by P1 naught is equal to N2 by N1 plus N2. Since over here let us assume कि हम डील कर रहे हैं dilute solution के साथ, ठीक है, मान लो कि हम डील कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ जहां पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉल्यूट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है. ओके, तो ये जो एडिशन वाली चीज है प्लस N2 को हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, इट इज हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to N2 by N1, and this is in case of dilute solution. For dilute solution. Alright बच्चा, you have to be very very clear over here. Okay, समझ में आना चाहिए सबको. Alright, अगर किसी को कोई भी डाउट है you can comment it down. ठीक है, अब इतनी बात होगी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मोल कंसेप्ट में सबने पढ़ा हुआ है ये. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है बच्चे दैट इज P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट. बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2, that is number of moles of solute. ध्यान देना है ये जो 2 वाली टर्म है दिस इज फॉर सॉल्यूट और जो 1 वाली टर्म है दिस इज फॉर सॉल्वेंट. ओके, तो N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू W2 बाय M2. ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू W1 बाय M1. ठीक है, सो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ऑलराइट बच्चा, सो दिस वाज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है. अब देखो इस एक्सप्रेशन को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास. हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बाकी की सारी वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज elevation of boiling point. Okay, elevation of boiling point. Now let us see what is happening over here. ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है बच्चे, सबसे पहले ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. अब ऐसा क्यों, लेट अस अज्यूम. ओके, सो ऐसा क्यों होता है, लेट अस सी फर्स्ट. ओके, सो वी आर हैविंग अ प्योर सॉल्वेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स कि ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा व्हेन आई एम हीटिंग दिस. ओके, तो इसका वेपर प्रेशर होगा हाई. जैसे ही मैंने सॉल्यूशन फॉर्म यहाँ पे कर दिया है, जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया बच्चा, देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जो वेपर प्रेशर है दैट डिक्रीजेस. वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है बिकॉज सरफेस के ऊपर अब हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब लिक्विड स्टार्ट बॉइल कब करना शुरू करता है, जब उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाए, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ. पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट था. ठीक है, उसका वेपर प्रेशर हाई था. ओके, उसका वेपर प्रेशर हाई था, दैट मीन्स कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज कि उसको थोड़ा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा टू बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन जैसे ही मैंने प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया.
ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो आई नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन, कि हमें जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड द रीजन बीइंग कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है होता है बच्चे, दैट इज लेस as compared to the pure liquid. Okay, so if we add solute to the pure solvent, then it will form a solution in which vapor pressure decreases, and I'm telling you कि ये जो vapor pressure में decrease आता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा vapor pressure में, ये जो decrease आता है in case of solution, तो इसके consequences आपको freezing point और boiling point दोनों में ही देखने को मिलेंगे। So make sure कि दोनों की definition अगर आपको एकदम clear है ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, सो क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज लेस। ओके, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब हमें बॉईल करना है सॉल्यूशन को, तो बॉईल करने के लिए हमें इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। सो आई नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन सो दैट इट कुड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो दैट इज वाई जो यहाँ पे हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो यस, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन टू बॉयल इट शुड बी हीटेड मोर। ओके, उसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है, जो कम हुआ वेपर प्रेशर है, हम उसको हाई कर सके, एंड इट शुड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्लियर विद दैट? All right, so next is a solution of 1 mole of sucrose is 1000 gram or in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin, whereas pure water boils at 373 Kelvin. तो कंपैरिजन आप यहीं पे कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हाई एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ओके, तो बच्चे यहाँ पे देखिए, इफ टी बी नॉट, ये जो नॉट वाली टर्म्स है ना, इनको आप प्योर का समझो। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑलराइट। सो इफ टी बी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे वाटर का प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर प्योर सॉल्वेंट है। जैसे सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट in water, that means solute in liquid. Okay, so water is the pure solvent and solution किसका है, sucrose plus water का। ओके, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज TB नॉट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने पे बनता है। ओके, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, आप ये देखो कि TB दैट मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो इससे हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। एंड डेल्टा TB इज कॉल्ड एज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो डेल्टा TB है दैट इज कॉल्ड एज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कितना टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ही हम कुछ एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं बच्चे। इट वॉज फाउंड दैट जो डेल्टा TB है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी LITY मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर, kg एक्चुअली। ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज योर KB। ऑलराइट, सो KB इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब इतना एक्सप्रेशन पता चल गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, मोलैलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर ग्राम पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में भी जो मास होना चाहिए सॉल्वेंट का, ओके, इट शुड बी योर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो इट शुड बी W1, और ये किस में होगा, ग्राम में या फिर kg में, इट शुड बी इन kg। ओके, तभी तो इसकी मोल्स पर kg होती है यूनिट। ऑलराइट, अब ये पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, बट थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज गिवन बाय वेट बाय
molecular weight into W1 that should be in kg. ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन. नाउ इसको जब पुट करेंगे देन डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB इनटू, यहाँ पे मान लो बच्चों कि जो मोलैलिटी है, ठीक है, मोलैलिटी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ W1 बाय M1 इंटू W1. व्हाट इफ कि W1 जो हमें मास है सॉल्वेंट का दैट इज गिवन इन ग्राम्स, तो उस केस में यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. तो ये जो 1000 आपको दिखता है इन योर NCERT दैट इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, तो ये आ जाते हैं हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, सो ये क्लियर होना चाहिए. ये फाइनल एक्सप्रेशन क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. यू जस्ट नो अबाउट, यू शुड नो अबाउट दिस एक्सप्रेशन ओनली. इस एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा देन यू कैन इजीली कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो दिस वाज अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चे कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हाई. ओके, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज हाई एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ओके, तो ये है हमारा कम. सो दिस इज द चेंज दैट यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल चेंजेस, जो कि हमने देखा कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ओके, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड यहाँ पे ही जो KB कांस्टेंट है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके नाम इतने अटपटे हैं कि जानबूझ के इतने सारे नाम दे रखे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज किया जा सके. ओके, एंड यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी नेम बिकॉज आपको नहीं पता कि न्यूमेरिकल किस नेम की फॉर्म में आएगा. ओके, सो KB इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ebullioscopic constant, ebullioscopic. Okay, so these all are the names of KB. And next we are going to talk about molality. तो बच्चे molality का भी हमने expression derive already कर लिया है. What we discussed about is, yes, so TB, delta TB is equal to KBM. और हमने क्या देखा, delta TB is equal to KB into W2 by M2 into W1 that should be in grams. तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ. एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो यस, यहाँ पे आपको जो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है. ठीक है, एंड इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है. तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए एंड टू बॉइल दैट सॉल्यूशन वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, क्लियर अबाउट दैट. Okay, so this is the final expression and next we are going to talk about one question. Alright, okay, एक question है बच्चे that 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature water boils at 1.013 bar? Kb for water is found to be 0.52. Okay, so what do we have to calculate over here? यस, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है बच्चा. यस, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज गिवन होती है ना, उन्हें आप देखा कीजिए. ऑलराइट, सो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन ओवर हियर, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स यह हमें गिवन है W2 18 ग्राम्स. ओके, एंड इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, तो ये हमें गिवन है W1 1 kg. Okay, and in a saucepan at what temperature water boils at 1.0313 bar, pressure is given. So Kb for water, Kb is also given as ebullioscopic constant is also given as 0.52 Kelvin kg per mole. तो फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है. ठीक है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है. इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चे 180.
ओके, मॉलिक्यूलर वेट इज 180, बाकी W2 गिवन है, W1 गिवन है, Kb गिवन है. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर. ओके, व्हाट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल्स करता है. ओके, सो मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली. देन फाइनली व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? यस बच्चे, डेल्टा टीबी आ जाएगा. ओके, एंड वी नो दैट कि जो डेल्टा टीबी है दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. ऑलराइट, सो उसी एक्सप्रेशन को यूज करके वी जस्ट हैव टू यूज द वैल्यूज. ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे, यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, तो ऐसे डायरेक्टली हमेशा नहीं आएगा कि यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ओनली. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू जो टीबी है माइनस टीबी नॉट है. इस एक्सप्रेशन को यूज करके भी आपको कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है. ऑलराइट बच्चा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है. ओके, और उस डेटा को यूज करके हाउ कैन वी कैलकुलेट द थिंग दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ हमें मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. ओके, वंस मोलैलिटी इज कैलकुलेटेड देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू पुट करके यू हैव टू कैलकुलेट दैट. देन फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है इसको यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट द this. okay, that is boiling point of the solution. वो solution कब boil करना शुरू करता है, that is the boiling point of the solution, और वही आपको calculate करना था. okay, so इस तरह से we have calculated this thing. Now next colligative property is depression of freezing point. It is also very very interesting बच्चा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से देखने को मिलता है, बिकॉज जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे भी अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन it may be defined as the temperature at which vapor pressure of the substance in the liquid phase becomes equal to the vapor pressure of the solid phase. ओके, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के जो वेपर प्रेशर है जब वो इक्वल हो जाते हैं देन हम कहते हैं कि जो सब्सटेंस है दैट विल स्टार्ट फ्रीजिंग. ओके, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो रीच हो चुका है. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि सबसे पहले मेरे पास एक प्योर लिक्विड था. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर वाज हाई. ओके, वेपर प्रेशर उसका हाई था. देन उसके अंदर जब मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसको सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट कर दिया, उसका वेपर प्रेशर अब डिक्रीज हो चुका है. ओके, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू बच्चे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब अब उस वेपर प्रेशर को वी हैव टू इक्वेट टू द सॉलिड फेज. हमें उसे इक्वेट करना है सॉलिड फेज के इक्वल तक ताकि वो फ्रीज होना शुरू कर जाए. आर यू गेटिंग और नॉट? ओके बच्चा, ध्यान से समझो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए. ओके, सो यस, लुक ओवर हियर केयरफुली. What we are doing, vapor pressure of the pure solvent is greater than the vapor pressure of the solution. ये हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं. ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, इससे पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले. ठीक है, सो लुक, ओके, सो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द solution. Okay, so now vapor pressure of pure solvent decreases on adding solute to it. That means solution का जो vapor pressure है that is less than the vapor pressure of the pure solvent. I'm repeating in so many times. Okay, and now to freeze the solution the temperature will be lowered so that vapor pressure may become equal to the vapor pressure of the solid phase. Now what is happening over here? यहाँ पे देखो कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज है. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो चुका है. नाउ टू मेक इट इक्वल टू द सॉलिड फेज मुझे उसका जो टेम्परेचर है फर्दर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो जाए टू द सॉलिड फेज. ध्यान से समझिए, उसका वेपर प्रेशर कम था.
ठीक है, वेपर प्रेशर कम था एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और अब मुझे उस सॉल्यूशन को करना है फ्रीज. So that means I have to equate the vapor pressure of the solution to the vapor pressure of the solid phase, जिसके लिए मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ओके, ताकि वो उसके इक्वल हो जाए, ताकि वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, एंड द सॉल्यूशन, जो मेरा सॉल्यूशन है, इट शुड स्टार्ट फ्रीजिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर. एंड इसी तरह से जो मेरा डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज C. Alright, and depression in freezing point is denoted by delta TF. जैसे delta TB is elevation of boiling point and delta TF is the depression of freezing point. Okay? Alright. So next is, अब depression in freezing point को हम कैसे denote कर रहे हैं बच्चे? delta TF से. Alright, and at the freezing point of a substance, the solid phase is in the dynamic equilibrium with liquid phase. Okay, तो solid phase और liquid phase dynamic equilibrium में होते हैं. Okay, जैसे कि हमने देखा कि जो boiling point है वहां पे जो वेपर फेज है, लिक्विड फेज है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है बच्चे, कंपेयर करके अगर आप चीजों को स्टडी करोगे ना तो वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज. दैट वी ऑलरेडी न्यू. Okay, next is according to Raoult's law, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, the vapor pressure decreases. Done. Okay, this we all know. And now it would be become equal to the solid solvent at lower temperature, thus freezing point of the solvent decreases. ओके, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो फर्दर मुझे उस टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड फेज के जो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रीजिंग. ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिस्क्रिप्शन. नाउ थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट में भी ज़्यादा खास कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी बच्चे जो बेसिक चीज़ ये है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ये भी मोलैलिटी के ही इक्वल होता है. ओके, एंड मोलैलिटी के इक्वल होता है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. ऑलराइट, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो मोल जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एंड जो मेरा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. ठीक है, एंड यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. मोलैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे. वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर दैट इज डिनोटेड बाय KF. ओके, and yes, तो mathematically we can denote them like this. Alright बच्चा, अब यहीं पे we are going to explain in terms of molality. मोलैलिटी की टर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो KF है, this is called as your cryoscopic constant. Okay, cryoscopic constant कहते हैं, freezing point depression constant कहते हैं. ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं, and it is having the unit Kelvin kg per mole. Alright, clear to everyone? Okay, so बच्चे यहाँ पे molality, again molality is there. Molality is equal to number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. Okay, so यहाँ पे आएगा mass of the solvent, that is W1 in grams है, तो यहाँ पे you have to divide it with 1000, and N2 की जगह क्या लिख सकते हैं? It is given mass by molecular mass, so here will be 2 because we are talking about the solute. Okay, so into 1000 into W1, that is in grams. Alright, तो इसे यूज करके जो मेरे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट इज इक्वल टू KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1, that should be in grams. Okay, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ऑलराइट, एम आई क्लियर टिल नाउ? ओके बच्चा,
ओके, सो दिस वॉज अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज एक्सप्लेन की गई है. ओके, सो लेट मी राइट इट वन मोर टाइम, बिकॉज जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार समझ में आएगा. ठीक है, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 into 1000 by M2 into W1, that should be in grams, because ये 1000 हमने इसीलिए अप्लाई किया है ताकि हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सके. ठीक है, यस बच्चे, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे. ओके, एंड जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? इट इज इक्वल टू वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. Okay, so this was about the molality and its relation with depression of freezing point. Okay, तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम वाटर की बात करते हैं देन इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहीं पे अगर हम सॉल्टी वाटर ले लें या फिर सी वाटर ले लें जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. वाटर सॉल्टी होगा ना, सी वाटर विल बी सॉल्टी बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो एक हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है, एंड इट वॉज सीन दैट कि जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है दैट इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है वो आपको नॉर्मल वाटर और सी वाटर में भी देखने को मिलता है. ठीक है, जस्ट बेसिक एग्जाम्पल. ऑलराइट, okay, so moving further we are having our last property, last colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. ओके, तो बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर पे डायरेक्टली जंप करने से पहले वी शुड नो अबाउट ऑस्मोसिस. ये ऑस्मोसिस होता क्या है? बहुत बच्चों ने बायो में भी पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने. ठीक है, तो बच्चे ये ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, that permits the movement of the solvent particles, जो permit करता है movement of the solvent particles from semi-permeable membrane from the chamber of higher concentration to the lower concentration. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से कोई सेटअप है. ठीक है, आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ सेटअप, और बीच में एक आपकी लगी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेमी, कुछ चीजों को परमिट करती है अपने से पास होना, अदरवाइज सबको परमिट नहीं करती है. ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही परमिट करती है टू पास थ्रू इट, अदरवाइज सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. ओके, हमेशा ध्यान में रखना है व्हेन यू आर डीलिंग विद द ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो वहां पे आपको सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखनी है. ओके, ना कि सॉल्यूट की. ऑलराइट, सो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां से ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन साइड. ओके, और कब तक मूव करेंगे? जब तक वो कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाती. ओके, सो ओवर हियर द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे आप खुद सोचो बच्चों कि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ लेफ्ट टू राइट की तरफ जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट है, दैट विल बी सीन. ओके, बिकॉज एज द डेफिनेशन से कि जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम higher concentration, okay, from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent side. Okay, so this was about the osmosis. Now next is, अब ये मूवमेंट कब तक चलती है? जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाती, जब तक दोनों साइड में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती. ठीक है, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे आप ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन के साथ एकदम कंफ्यूज ना करो. ऑलराइट, बिकॉज डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे? इट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही मूवमेंट होती है. ठीक है, दोनों की मूवमेंट होती है. कहाँ से कहाँ पे?
सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहां पे हाई और जहां पे कम, तो ज्यादा से कम की तरफ उसकी मूवमेंट होगी सॉल्यूट की, और उसी तरह से सॉल्वेंट के केस में भी होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम नेट मूवमेंट की बात यहाँ पे करते हैं इन केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑलराइट। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में वी जस्ट टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, alright, so this was about the introduction. Now next is osmotic pressure. अब ये osmotic pressure क्या होता है बच्चे, एक डायग्राम से बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी आर हैविंग टू चैम्बर्स, ठीक है, हमारे पास टू चैम्बर्स हैं जिनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट कर रखा है, ऑलराइट। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, ओके, एंड जहां से हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन साइड की तरफ इनकी मूवमेंट होगी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए कि सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तरफ की साइड को मूवमेंट होगी, बिकॉज आप खुद सोचिए प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमें अप्लाई करना पड़ता है टू द सॉल्यूशन साइड, ओके, ध्यान से सुनिए, दिस इज योर सॉल्वेंट साइड, प्योर सॉल्वेंट साइड, और ये है सॉल्यूशन साइड। मूवमेंट कहां से हो रही थी, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड मूवमेंट हो रही थी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन साइड में इतना प्रेशर अप्लाई करूं कि जस्ट ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए, okay, so that minimum pressure which I'm applying to the solution side कि ये जो मेरा osmosis का प्रोसेस है ये बिल्कुल स्टॉप हो जाए, that is called as your osmotic pressure, okay, उसी को हम कहते हैं बच्चा osmotic pressure। और osmotic pressure को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से, ओके, सो दिस इज योर कैपिटल पाई एंड कैपिटल पाई इज इक्वल टू CRT, ऑलराइट बच्चा। तो CRT is the expression, okay, pi is equal to CRT and over here pi is equal to C क्या है, concentration, molarity, alright, so molarity is given by N2 by V in liters, okay, R into T, alright बच्चा। so अगर मैं N2 को भी कन्वर्ट करती हूँ, N2 को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो बेसिकली पिक्चर में क्या आ रहा है, N2, that means moles of solute, so again osmotic जो मेरा pressure है that is your colligative property, so it is depending upon the number of solute particles, alright, so this pi will be equal to, देखो बच्चों number of moles of solute is given by W2 by M2 into V in liters and into R into T, ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करके डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2, सो दैट इज व्हाई जो टॉपिक था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस, ओके, सो इस तरह से वी कैन डिटर्मिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज वेल एज मॉलिक्यूलर मासेस, ऑलराइट बच्चा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर से ही कुछ रेलेवेंट टर्म्स हैं, ओके, जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज, देखो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है। व्हाई इट इज सो एडवांटेजियस, बिकॉज जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं या फिर मेजरमेंट्स होती हैं इन ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जो हो गए, दिस ऑल आर स्टेबल ओनली एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो अगर कोई हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में यूजफुल है at room temperature only, so that is very very advantageous, okay, so this is what osmotic pressure is doing over here, okay, because जो calculation है involved over here are at room temperature, okay, so ये चीज आपको conceptual question में आ सकता है। एंड नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक,
ओके तो बच्चे सबसे पहले आइसोटोनिक की बात करते हैं। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ओके, और उनको मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करा हुआ है इन द टू चैम्बर्स, देन उस केस में मुझे कोई भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम सेम है। ओके सो वो बिल्कुल भी वहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस अंडरगो नहीं करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज योर आइसोटोनिक। ओके आइसो मतलब सेम और सेम जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड इज इक्विवेलेंट टू 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ओके तो कभी कभार ऐसा होता है ना बच्चे, किसी का जो बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें लिक्विड इनटेक करना पड़ता है इस तरह से। ओके सो ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ देन ऑस्मोटिक प्रेशर विद फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल्स इज इक्विवेलेंट। उसकी क्या कंपोजिशन होती है? दैट इज हैविंग द कंपोजिशन 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाहर से जो हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इनटेक करेंगे तो उसकी जो कंपोजिशन होती है बच्चे दैट शुड बी वेरी वेरी केयरफुली टेकन। ओके उसकी कंपोजिशन को हमें अच्छे से जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनको अच्छे से इनटेक करना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर सकता है इन आवर बॉडी। ओके लेट्स सी हाउ। उसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके so let's talk about hypertonic first। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने जो सेलाइन सॉल्यूशन इनटेक किया, व्हाट इफ कि उसकी कंपोजिशन या फिर उसका जो कंपोजिशन है दैट इज हैविंग ग्रेटर देन 0.9%। ओके उसकी कंपोजिशन अगर ग्रेटर देन है 0.9%, 0.9 क्या है? जो ब्लड सेल्स के अंदर कंपोजिशन प्रेजेंट है। ओके देन व्हाट विल हैपन, आप देखो बच्चों कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी फिर। ओके ग्रेटर देन 0.9% मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी मोर इन द सेलाइन सॉल्यूशन। ओके और हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि जो मूवमेंट होती है दैट विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके लेकिन जो सेलाइन वाटर हमने इनटेक किया दैट इज हैविंग ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट, तो कंपैरेटिवली जो मेरे ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसीलिए ब्लड सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो हमारी बॉडी है उसकी तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी दैट विल बी सीन। ओके एंड अल्टीमेटली जो ब्लड सेल्स होते हैं दे विल श्रिंक, वो श्रिंक हो जाएंगे बिकॉज सारा का सॉल्वेंट बाहर की तरफ जा रहा है। ओके एंड इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बच्चे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, कुछ बच्चों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये हाइपोटोनिक अब क्या होता है। हाइपोटोनिक इज जस्ट अपोजिट टू हाइपरटोनिक। किस तरह से? अगर जो हमने सेलाइन वाटर इनटेक किया है, ओके सेलाइन वाटर दैट वी आर इनटेकिंग, अगर उसकी कंसंट्रेशन है लेस देन 0.9%, दैट मीन्स कि उस सेलाइन वाटर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ओके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू द ब्लड सेल्स, देन ऑब्वियसली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इन दैट सेलाइन वाटर, तो इसीलिए जो ब्लड सेल के अंदर की तरफ अब मूवमेंट होगी ऑफ द solvent particles from the saline water। okay and ultimately जो blood cells होंगे they will swell up, वो swell up हो जाएंगे। okay वो फूल जाएंगे। ठीक है बच्चा, एंड इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हमने देख ही लिया है। ठीक है दैट इट इज द मिनिमम प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई करते हैं टू एग्जैक्टली स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन व्हाट इफ कि सॉल्यूशन साइड पे हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, व्हाट इफ कि हमने सॉल्यूशन साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप खुद सोचो बच्चों कि सॉल्यूशन साइड से जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो वापस से आने लगेंगे टू द सॉल्वेंट साइड,
टू द प्योर सॉल्वेंट साइड। ओके, तो मान लो कि सेलाइन वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, वो हो गया मेरा सॉल्यूशन, उसको मैंने ले लिया राइट हैंड साइड वाले चैम्बर में। तो अगर मैं उस साइड पे प्रेशर अप्लाई करती हूं देन व्हाट विल हैपन, सॉल्यूट तो उसी में रह जाएगा, उसी चैम्बर में रह जाएगा, लेकिन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी इतनी कैपेबिलिटी है दैट दे कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए वो हमारे फ्रेश वाटर वाली साइड आते रहेंगे, दैट मीन्स सॉल्वेंट वाली साइड आते रहेंगे, और इसी तरह से जो मेरा वाटर है दैट कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग RO। ओके, घर में लगा RO नहीं, दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, सो रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज करके वी कैन प्यूरिफाई वाटर ऑल्सो। ओके, द प्योर सॉल्वेंट विल फ्लो आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, सो ये टेक्निक बहुत सारी कंट्रीज में आजकल यूज हो रही है। लास्ट टॉपिक है बच्चे एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं? मासेस ओके, कुछ हमारे मासेस कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं देन द एक्सपेक्टेड मास, उसी को कहते हैं एबनॉर्मल मासेस। ओके, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, सो दैट यू कैन सी ओवर हियर। एग्जांपल, एसिटिक एसिड इन बेंजीन मेक्स अ डाइमर। तो बच्चे एसिटिक एसिड अगर हम वाटर में इन बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये एक डाइमर बना देता है। ठीक है, सो वी वर एक्सपेक्टिंग सम अदर मोलर मास, लेकिन यहाँ पे हमें मोलर मास क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है। ओके, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइमर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कैलकुलेटेड आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एक्चुअल से थोड़े डिफरेंट मिलते हैं, देन ऑब्वियसली हमने मॉलिक्यूलर मास भी कुछ और एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमें एक्चुअल में मिलता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अराइज होती है बच्चे इन केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। ऑलराइट, और ये होता क्यों है? ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास है, दिस हैपेंस ड्यू टू द टू रीजन। एक तो एसोसिएशन हो सकती है या फिर डिसोसिएशन हो सकती है। ठीक है, सो इसी के कॉन्सेप्ट के विद रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास वैन हॉफ फैक्टर आता है। ठीक है बच्चे, सो हियर वी आर हैविंग वैन हॉफ फैक्टर। ऑलराइट, एंड वैन हॉफ फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट बेसिकली टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ आयंस। ऑलराइट, एंड इट इज कॉल्ड वैन हॉफ फैक्टर एंड आई to account for the extent of dissociation and association. Okay, so abnormal molar masses is experimentally determined and जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने ये अज्यूम किया था कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं वो ना ही एसोसिएट करते हैं ना ही डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैन हॉफ फैक्टर को भी अज्यूम करते हैं तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद आई। ओके, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर के साथ हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हमने तो ये जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें तो वी हैव अज्यूम्ड कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना ही वो एसोसिएशन अंडरगो करता है ना ही डिसोसिएशन। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि एसोसिएशन के केस में जो वैन हॉफ फैक्टर है दैट इज लेस देन 1 एंड फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो यस, फाइनली क्या चेंजेस आते हैं हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में? यस, व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस हमने क्या देखे? दैट Pi0 माइनस Pi बाई Pi0 इज इक्वल टू X2। ठीक है, सो इट विल बी योर I Chi2। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB small m, and third one was depression of freezing point, F is equal to I KF into m। ओके, फाइनली हमारे पास फोर्थ आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद वैन हॉफ फैक्टर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं।
Alright, Bacha Party. So that was it for this session. I hope you enjoyed the session and you got each and every point. ठीक है, हर चीज आपको समझ में आई है. And yes, if you did understood the concept, then make sure to like the video and share it with your friends. And if you are new to the channel, make sure to subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much. Bye bye everyone.